नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। दोस्तों, आज बात करेंगे 1G से लेके 5G तक का सफर, कैसे बदली तकनीक और क्या बदलाव आने वाले हैं। फोन हमारा रिश्ता काफी पुराना है और उतना ही मजबूत भी है। जहां पहले के फोन वायर वाले हुआ करते थे, फिर कॉर्डलेस का जमाना आया और अब वायरलेस फोन का दौर चल रहा है। पहले के बेसिस फोन के जगह जब नए जनरेशन के लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने लगे हैं, फोन के इस बदलते रूप रंग के साथ ही उसकी जनरेशन भी जुड़ी हुई है, जो कि 1G से लेके 4G का सफर तो तय कर चुकी है और अब आगे 5G की सफर अपना रुख कर रही है। ऐसे में जानना काफी रोचक हो सकता है कि आने वाली 5G क्या है, क्योंकि वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ने 5G की टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है। इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी क्या है और यह कैसे मौजूदा मोबाइल इंडस्ट्रीज में क्या बदलाव ला सकती है। इंटरनेट की दुनिया में कई बदलाव देखे गए हैं। पहले यूजर्स 1G का इस्तेमाल करते थे और अब 4G का यूज कर रहे हैं। 1G से 4G तक का सफर न सिर्फ इंटरनेट दुनिया के लिए बल्कि यूजर्स के लिए भी काफी बदलाव लेकर आया था। 4G तकनीक ने यूजर्स को इंटरनेट पहले से ज्यादा तेज इस्तेमाल करने का मौका भी दिया और अब भारत में 5G की शुरुआत हो चुकी है। आइए देखते हैं एक डॉक्यूमेंट्री। India, a country with 116 crore telecom subscribers, has the second largest user base in the entire world. Since 2014, the broadband subscriber base has increased by 1,200% to 79 crores, and the average data consumption per user has grown more than 20-fold. On the clarion call of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, India has recently demonstrated Atmanirbhar 4G capability. As we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, it is time for a qualitative leap forward to shape the future of telecommunications in India and the world. Towards this, we have taken several steps to develop the entire 5G ecosystem within India. In an effort to nurture talent, Department of Telecommunications conducted a 5G hackathon where startups were given an opportunity to showcase their innovations. To improve rural 5G coverage, new enhanced wireless standards called 5GI and LMLC were developed jointly by Indian academia and industry. These enhanced standards are now part of the global 5G standard. बजट में इसी साल 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन को लेकर बहुत स्पष्ट रोड मैप बताया गया है। देश में स्ट्रॉन्ग 5G इकोसिस्टम ने इसे जुड़ी हुई डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बजट में PLI स्कीम्स प्रपोज की गई है। Till now, India did not have a testing facility, and hence startups and companies had to go abroad. With a fund of 224 crore rupees, more than 300 engineers and 40 scientists across 8 institutes collaborated to develop a complete end-to-end 5G testbed facility. The testbed has all the components of the 5G network, ranging from the antennas, radios, the base stations, to the core network at the heart of the systems. The testbed provides full capability to support and test IoT applications such as autonomous vehicles, smart sensors, remote robotics, and the like. The testbed supports Indian industry and startups to test and validate their 5G products, solutions, and use cases. It will also help build human resource capacity for 5G in the country. In a quest for Atmanirbhar 5G technology,
the institutes building the test bed took a further leap to develop a secure, indigenous 5G network solution for licensing and manufacturing in India. It is a fitting testimony to the abilities of India at 75 that the entire hardware and software for the solution has been designed and successfully developed by our young engineers spread across the country. Over the coming years, the solution will meet India's needs indigenously and securely. With this strong foundation towards Atmanirbhar 5G, India is now poised to play a leading role in shaping the future of telecom technology as it marches towards 6G. It is indeed a great privilege for all of us that the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is dedicating the 5G test bed today. देश में पहले चरण में 13 शहर अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत हो चुकी है। गौरतलब है कि 4G की तुलना में 5G नेटवर्क कई गुना तेज गति देता है और बाधा रहित संपर्क मुहैया कराता है। अरबों जुड़े डिवाइसों को वास्तविक समय में डेटा साझा करने में सक्षम बनाता है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 5G से नए आर्थिक अवसर और सामाजिक लाभ मिल सकते हैं, जिसके कारण यह भारतीय समाज के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति होने की क्षमता रखता है। वह देश की वृद्धि के लिए पारंपरिक बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा। स्टार्टअप और व्यावसायिक उद्यमों द्वारा नवचारियों के साथ ही डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा। 1.5 लाख करोड़ में हुई थी स्पेक्ट्रम की नीलामी। देश की अब तक की सबसे बड़ी दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी का रिकॉर्ड हुआ था और 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोलियां प्राप्त हुई थी। इनमें उद्योगपति मुकेश अंबानी की जियो के लिए करोड़ों रुपए की बोली के साथ ये स्पेक्ट्रम ले लिया गया था और लगभग आधा हिस्सा हासिल कर लिया है। भारत के सबसे धनिक व्यक्ति गौतम अडानी के समूह ने 400 मेगाहर्ट्ज के लिए 211 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इसका इस्तेमाल हालांकि सार्वजनिक टेलीफोन सेवाओं के लिए नहीं किया जा सकता। वही दूरसंचार क्षेत्र के लिए सुनील भारती मित्तल की भारती एयरटेल ने भी सफल बोली लगाई थी और वोडाफोन आइडिया ने भी स्पेक्ट्रम को खरीदा है। दूरसंचार कंपनियों ने 5G की सेवा चालू करने की तैयारी में जुटे थे और 2 दिन पहले ही 5G ने भारत में दस्तक दे दी है। बेहतर डेटा स्पीड और रुकावट मुक्त वीडियो के लिए हर भारतीय आज तैयार है। यह सेवा सुपरफास्ट स्पीड 4G से लगभग 10 गुना तेज, संपर्क में होने वाली देरी में कटौती और अरबों उपकरणों को वास्तविक समय में डेटा साझा करने में सक्षम बनाती है। इसके जरिए 3D होलोग्राम, कॉलिंग, मेटावर्स अनुभव और शैक्षणिक अनुप्रयोगों को नए सिर से परिभाषित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पहली बार 5G इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल किया और इतिहास रच दिया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी ने 5G की तकनीकी का शुभारंभ भी कर लिया और पहली बार है जब देश में किसी जगह 5G का सफलतापूर्वक इस्तेमाल हुआ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। साथियों, 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है। नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय
भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। हम सभी के लिए यह जानना अहम है कि 5G आखिर है क्या, इस स्पेक्ट्रम निनाली में कैसे क्या मिला, 5G के आने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या इसके आने के बाद डेटा प्लान महंगे हो जाएंगे, आम उपभोक्ता को कब तक 5G सेवाएं मिलने लगेगी, 5G स्पीड के अलावा कौन सी सुविधाएं हम सभी को मिलने वाली है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 1 अक्टूबर से टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े इवेंट इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 6ठे एडिशन की शुरुआत हो चुकी है। यह आयोजन 4 दिन तक चल रहा था और आज उसका जो दिन है वो अहम है। इसी इवेंट में पीएम 5G सर्विस की शुरुआत भी की थी और पीएम के साथ आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, राज्य मंत्री देवुसी चौहान भी वहां पे उपस्थित थे। इवेंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके बेटे आकाश अंबानी और वीवाई मोबाइल के सर्विसेज के प्रमुख कुमार मंगलम बिरला भी मौजूद थे। आसान शब्दों में समझे तो 5G सबसे आधुनिक स्तर का नेटवर्क है जिसके अंतर्गत इंटरनेट स्पीड सबसे तेज होगी, इसकी विश्वसनीयता ज्यादा होगी और इसमें पहले से ज्यादा नेटवर्क को संभालने की क्षमता भी होगी। इसके अलावा इसकी मौजूदगी का क्षेत्र ज्यादा होगा और एक्सपीरियंस भी यूजर्स फ्रेंडली होगा। 5G की सबसे बड़ी खास बात है कि यह निचली फ्रीक्वेंसी के बैंड से लेकर हाई बैंड तक की वेव्स में काम करेगा, यानी कि इसका नेटवर्क ज्यादा व्यापक और हाई स्पीड होगा। 5G के आने से क्या फर्क पड़ेगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। 4G के मुकाबले 5G में यूजर को ज्यादा तकनीकी सहूलियतें मिलने वाली है। 4G में इंटरनेट की डाउनलोड स्पीड 150 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड तक सीमित है। 5G में यह 10 GB प्रति सेकंड तक जा सकती है। यूजर सिर्फ कुछ सेकंड में ही भारी में से भारी फाइल्स डाउनलोड कर सकेंगे। 5G में अपलोड स्पीड भी 1 GB प्रति सेकंड तक होगी, जो कि 4G नेटवर्क में सिर्फ 50 Mbps तक सीमित है। दूसरी तरफ 4G के मुकाबले 5G नेटवर्क का दायरा ज्यादा होने की वजह से यह बिना स्पीड कम रुके और कई और डिवाइसेस के साथ जुड़ सकेगा। इंडियन टेलीकॉम कांग्रेस की एक डॉक्यूमेंट्री है, आइए देखते हैं। India, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, is rapidly marching ahead on the path of unprecedented development. Technology has contributed significantly to India's growth story. Digital India has been an enabler in transforming sectors, bringing positive change in the lives of people, providing government services to the last person, and empowering the unempowered. India's mighty IT sector is for global good. India's strength lies in developing low-cost, innovative, inclusive and sustainable solutions that further ease of living for people.
As India is taking new resolutions in this Amrit Kaal of independence, it is a beginning of a new chapter in this decade of India. Today, we herald a new era of technology, innovation and growth, led by the vision that strives to create a difference in the lives of every citizen of the country. एक नया विश्व तैयार हो रहा है। भारत उसे आगे बढ़ाने के लिए, और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, ये डेकेड मानव जात के लिए डेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड है। 5G, a vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, is a technology mission. The advent of 5G technologies will be a game changer for the economic and social development of the country. This will revolutionize various building blocks of the nation, including education, agriculture, healthcare, manufacturing and logistics, and add strength to the nation's resolve of building a developed India. The India Mobile Congress, a global platform working towards the vision of creating a new digital universe, promises to be the largest congregation of the industry, intelligentsia, and the end consumer. Spread over an area of 26,000 square meters, the event will be a host to over 5,000 CXOs from various companies. There would be over 230 exhibitors and over 100 startups would showcase their tech prowess. The multiple parallel conferences would be attended by over 196 global speakers. An estimated 70,000 visitors would attend this 4-day event, making it one of the most prolific events in its genre. The India Mobile Congress 2022, a global platform for a global vision. यूजर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल है 5G इंटरनेट के लिए चुकाई जाने वाली कीमत क्या होगी। भारत में स्पेक्ट्रम नीलामी कुछ समय पहले ही पूरी हो चुकी थी। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों को जल्द ही अपने प्लान्स के बारे में जानकारी दे सकती है। हालांकि नई तकनीक को लाने में हुए खर्च की वजह से 5G सेवा की कीमतें 4G से ज़्यादा रहने का अनुमान भी है। जिन देशों में 5G सेवाएं लॉन्च हो चुकी है, अगर उनमें 4G और 5G की कीमतों का अंतर देखा जाए तो सामने आता है कि अमेरिका में 4G अनलिमिटेड सेवाओं के लिए जहां $68 करीब 5,000 रुपये तक का खर्च करना पड़ता है, वहीं 5G में यह अंतर बढ़कर $90 के आसपास पहुंच चुका है। मतलब कि 6500 रुपयों के आसपास पहुंच चुका है। अलग अलग प्लान्स के तहत यह फर्क अलग अलग होता है। 4G के मुकाबले 5G का प्लान 10 से 30% तक महंगा हो सकता है। हालांकि भारत में यह फर्क काफ़ी कम रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि बीते वर्षों में भारत में डेटा की कीमत दुनिया में सबसे कम रही थी। इसी साल मार्च में एयरटेल के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रणदीप शेखोन ने कहा था कि 5G के प्लान्स 4G के ही आसपास रखे जाएंगे। मोबाइल कंपनी नोकिया इंडिया के CEO रणदीप रैना भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि भारत में जल्दी 5G के रोल आउट के प्लान्स सबसे कम कीमतों में रखा जाएगा। आम उपभोक्ता और यूजर्स को कब तक 5G सेवाएं मिलने लगेगी, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 2 दिन पहले वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने वाराणसी और अहमदाबाद के गांव में 5G की शुरुआत तो कर ली है, लेकिन आने वाले दिनों में कौन से शहरों में 5G का नेटवर्क हमको मिलेगा, वो भी एक सवाल है। इसके पहले सभी सवालों का जवाब भी हम पाएंगे, लेकिन वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। आज हमारे छोटे व्यापारी हो, छोटे उद्यमी हो, लोकल कलाकार हो, कारीगर हो, डिजिटल इंडिया ने सबको मंच दिया है, बाजार दिया है। आज आप किसी लोकल मार्केट में, आप सब्जी मंडी में जाकर देखिए, रेहड़ी पटरी वाला छोटा दुकानदार भी आपसे कहेगा कैश नहीं है, यूपीआई कर दीजिए। मैंने तो बीच में एक वीडियो देखा, कोई
भिक्षुक भी डिजिटली पेमेंट लेता है। ट्रांसपेरेंसी देखिए। ये बदलाव बताता है कि जब सुविधा सुलभ होती है तो सोच किस तरह सशक्त हो जाती है। नमस्ते सर, मेरा नाम जैमिनी ठाकुर है। अच्छा बताइए, ये जो शिक्षक आपके सामने नहीं है और इस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। अच्छा, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और आप चाहोगी कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिल जाए? हाँ सर, मेरा मनपसंद साइंस है। अच्छा, उसको लगता है कि टेक्नोलॉजी से अब मजा आएगा, हाँ ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे। हाँ। अब ये जैसे हार्ट के विषय में अभी पढ़ाया, अगर ऐसा न होता और टीचर ने समझाया होता तो दिमाग में चित्र बनता कि हाँ ये कुछ ऐसा कह रहे हैं टीचर? नहीं बनता। देखिए, ये फर्क है टेक्नोलॉजी का, जिसका फायदा हमारे देश के बच्चों को होने वाला है। चलिए बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्टिंग के लिए 12 शहरों में इसी महीने में 5G सेवाएं शुरू हो जाएगी। हालांकि पूरे भारत में इसके पहुंचने में 2023 की पहली तिमाही तक का समय लग सकता है। रिलायंस ने इस दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों में इस दिवाली तक 5G सेवा शुरू करने का ऐलान कर लिया है। कंपनी ने दिसंबर 2023 तक देश के हर बड़े शहर और हर तालुका में 5G सेवाएं पहुंचाने की बात कर ली है। 5G लॉन्चिंग के बाद हमारे जीवन, कारोबार और काम करने के तरीके सब बदलने वाले हैं। दरअसल 5G की उन्नत तकनीक और उच्च क्षमता सभी चीजों को एक दूसरे से जोड़ने देगी। घर बगैर ड्राइवर वाली कार, स्मार्ट ऑफिस, स्मार्ट सिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कई अर्थों में देखा जाए तो तकनीक से जिन बेहतर और असंभव बदलाव के बारे में हम अक्सर सोचते हैं, 5G नेटवर्क से ये सब संभव हो पाएगा। यह संभावना जताई जा रही है कि 5G तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में खास अस्पतालों, हवाई अड्डों और डाटा संग्रहण के लिए बड़ी भूमिका निभाने वाला है। वायरलेस तकनीक की अगली पीढ़ी सिर्फ फोन तक सीमित नहीं होगी। 5G की एक खास बात यह है कि उन्हीं रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगा जिन पर मौजूदा मोबाइल डेटा, वाईफाई और सैटेलाइट संचार चलता है। यानी टेलीकॉम कंपनियां 5G नेटवर्क के लिए अपने पड़ोस में कोई अतिरिक्त टावर नहीं लगा पाएगी और लगाने की जरूरत भी नहीं होगी। रिलायंस जियो मुंबई के एक स्कूल के एक शिक्षक को महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा में 3 अलग अलग स्थानों के छात्रों से जोड़ेगी और इसके जरिए बताया जाएगा कि कैसे 5G शिक्षकों के छात्रों के करीब लाकर उनके बीच के फिजिकल डिस्टेंस को मिटाकर शिक्षा की सुविधा प्रदान कर सकता है। और इसका डेमोन्स्ट्रेशन वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने शनिवार के दिन किया भी था। अहमदाबाद के एक स्कूल के बच्चे, छोटे से गांव के बच्चे और वाराणसी के छोटे से गांव के बच्चों को एक साथ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये शिक्षा की सुविधा की टेस्टिंग भी की थी। आइए देखते हैं एक डॉक्यूमेंट्री। Those were the days when a telephone ring would bring a family together. It was a delight to be able to hear the voice of close ones through the telephone. The telecom industry has been one of the fastest growing technologies that has changed with time. Earlier, consumers had several hindrances: landline phones that wouldn't work for days, delay in voice calling with extremely poor technology. Mobile phone users were once charged for incoming calls as well, and mobile handsets were overtly expensive. Mobile users would think twice before receiving even an incoming call.
This was the time of 1G technology, the beginning of wireless telephony. That period existed from 1980 to 1992. However, the speed was limited to 2.4 kbps only. Mobile handsets were bulky and voice quality still needed improvement. 5G is to provide a faster speed. They are talking about a range which will be up to 10 Gbps, which means that if you are watching a film or if you are watching a match, you will see as if almost you are there. HD, high quality, high definition pictures and so on. The interesting thing about 5G and 4G and all this is that the voice call which we were making earlier and for which we were paying a very heavy amount is virtually free now. You might have come across the 4G phones which the new service providers are giving. They are giving voice call free. They don't charge for the voice call at all. They charge for the data, that how much data you are using. Now, the moment 5G will come, I believe that most of the company will try to switch over to 5G. 5G इंटरनेट सेवा के शुरू होने से भारत में काफी कुछ बदलने वाला है। इसमें न सिर्फ लोगों का काम आसान होगा, बल्कि इंटरनेट और एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी काफी कुछ बदलाव आ जाएगा। 5G के लिए काम कर रही कंपनियां एरिक्सन का मानना है कि 5G साल में भारत में 50 करोड़ से ज्यादा 5G इंटरनेट यूजर्स की संख्या होने वाली है। इंटरनेट नेटवर्क के 5वें जनरेशन को 5G कहते हैं। यह एक वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है जो तरंगों के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। इसमें मुख्य तौर पर 3 तरह के फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी बैंड एरिया कवरेज में सबसे बेहतर, इंटरनेट स्पीड 100 Mbps, इंटरनेट स्पीड कम। मिड फ्रीक्वेंसी बैंड का मतलब है इंटरनेट स्पीड लो बैंड से ज्यादा और 1.5 Gbps, एरिया कवरेज लो फ्रीक्वेंसी बैंड में काम है और सिग्नल के मामले में ठीक ठीक है। और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड इंटरनेट स्पीड सबसे ज़्यादा 20 Gbps और एरिया कवर के सबसे कम और सिग्नल के मामले में सबसे अच्छा। दोस्तों, 2G नेटवर्क से लेके 5G तक की सफ़र की भी एक अलग कहानी है। ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। आप परिचित हैं कि कैसे हमने 4G तकनीक के विस्तार के लिए पॉलिसी सपोर्ट दिया। इससे डेटा की कीमत में भारी कमी आई और देश में डेटा क्रांति का जन्म हुआ। देखते ही देखते ये तीनों फैक्टर, डिवाइस की कीमत, डिजिटल कनेक्टिविटी और डेटा की कीमत, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हर तरफ नजर आने लगा। लेकिन साथियों, इन सब के साथ एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। देश में डिजिटल फर्स्ट की सोच विकसित हुई। एक वक्त था जब बड़े बड़े विद्वान, एलिट क्लास, उसके कुछ मुट्ठी भर लोग, सदन के कुछ भाषण देख लेना, कैसे कैसे भाषण हमारे नेता लोग करते हैं, वे मजाक उड़ाते थे। उनको लगता था कि गरीब लोगों में क्षमता ही नहीं है, ये डिजिटल समझ ही नहीं सकते, संदेह करते थे। उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवी की समझ पर, उसके विवेक पर, उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा है। मैंने देखा है कि भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी नई तकनीकों को अपनाने में आगे रहता है। और मैं एक छोटा अनुभव बताता हूं। शायद ये 2007-8 का कालखंड होगा या 9-10 का, मुझे याद नहीं है। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री रहा, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था जहां मैं कभी गया
कभी कागज में पैगाम लिखकर उसे डाक से पोस्ट किया जाता था, लेकिन आज बस फोन के 2 बटन दबाते ही पैगाम दूसरे तक पहुंच जाता है। इंतजार जल्द ही खत्म होगा और 5G भविष्य की टेक्नोलॉजी कहा जाता था, परंतु हमारे दरवाजे तक आ चुकी है। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।